Advertisement, they even use the prominent people, the famous people, the stars and all, so that we get attracted towards those things. और प्रसिद्ध लोगों को इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम उस चीज के ऊपर हम आकर्षित हों. Because our eyes, the way we see, it actually creates a lot of impacts in our life. और जिस तरह से हम देखते हैं वो बात जो है हमारे जीवन में प्रभाव को डालता है. But the thing is that are we seeing according the way God sees? और लेकिन क्या हम जैसे परमेश्वर देखते हैं वैसे हम देखते हैं क्या? Today I strongly believe that you and me need to see the way God sees. और आपको और मुझको जैसे परमेश्वर देखते हैं उस हिसाब से देखना है. Our life should be like that. हमारा जीवन उस प्रकार होना चाहिए. So to have the vision of God, to see the way God sees. और जिस तरह से परमेश्वर नजरिया रखते हैं या देखते हैं उस तरह से हमें देखने के So लिए what we need to do? हमें क्या करना चाहिए? The very first point is that we need to come out of the old way of seeing the things. और पुराना जो तरीका है जिस तरह से हम देखते हैं उससे बाहर निकलना है. We all have our own way of seeing things. और हम सबका अपना एक नजरिया है चीजों को देखने के लिए. When we go for SSB, when we go for that, the selection procedure, there will be hazy picture. और वहाँ पर जब किसी सिलेक्शन के लिए हम जब जाते हैं वहाँ पर एक धुंधला सा एक चित्र होता है. And it may not be very clear. और वो वहाँ पर स्पष्ट नहीं होता. And we are asked to write a story from that thing. और उसमें से हमको जो है एक कहानी लिखने के लिए बोला जाता है. In the same picture, 100 people will write 100 kinds of stories. और उस एक ही चित्र में 100 लोग 100 अलग तरीके की कहानियों को लिख सकते हैं. Because our perception differs. और क्योंकि हमारा देखने का या समझने का जो नजरिया है वो फर्क करता But है. today, as we are seated here as a child of God, और आज जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर के जन के रूप में, our vision should match with God's eyes. और हमारा जो देखने का नजरिया है वो परमेश्वर की नजरों से मिलना चाहिए. Many times, because the way we see things, our lives go into trouble. और क्योंकि कई बार जिस तरह से हम चीजों को देखते हैं हमारा जीवन जो है परेशानी में गिरता है. The problem may not be so big. और परेशानी बहुत बड़ी नहीं होगी. But the enemy will try to show that so much big that by seeing that we get distracted. और लेकिन शत्रु जो है उसको ऐसा बड़ा करके दिखाएगा कि हम ध्यान भटक जाता है. So the first thing is that we need to come out of the old way of seeing. और जो पहला बात है कि जो पुराने तरीके से हम देखते हैं उससे हमें बाहर निकलना है. I can even say to become blind. और अंधा बनना है. God chosen Saul to be his servant. और परमेश्वर ने शाऊल को चुना अपना सेवक के लिए. And when he called him, the very first thing he did was to make him blind. और जब परमेश्वर ने शाऊल को बुलाया जो पहला काम किया वो उसको अंधा किया. The first thing when God have an encounter with you, He changes our vision. और जब परमेश्वर का आमना सामना होता है तब वहाँ पर हमारा नजरिया बदलता है. So see, Saul had an encounter with God. और शाऊल का परमेश्वर के साथ एक आमना सामना हुआ. What could be the reason that he has become blind? और क्या कारण हो सकता है कि वो अंधा हो गया? Now God could have shared his thought. God could have given a calling to him that I have chosen you to be my servant. He could have directly told him. और परमेश्वर ने उसको चुना था. परमेश्वर को स्पष्टता से बोल सकते थे कि मैंने उसको चुना है. But I believe that God wants to make him to understand the things. और लेकिन परमेश्वर उसको समझाना चाहते थे कुछ बातों को. For 3 days he was without sight. और 3 दिन तक वो देख नहीं सका. So the first thing is that to become blind so that we can see like God. और पहले तो जो है अंधा बनना ताकि हम परमेश्वर के समान देख सकें. The Acts of Apostles 9th chapter 8th verse, we see that then Saul arose from the ground. When his eyes were open, he saw no one. और प्रेरितों के काम 9वां अध्याय उसका 8वां वचन तब शाऊल भूमि पर से उठा परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया. He could not see anything. और उसको कुछ दिखाई ना दिया. He lost his vision. और उसको वो अंधा हो गया था. But that after he lost his vision, he was able to hear from God. और लेकिन जब उसको वहाँ पर वो देख नहीं पा रहा था उसके बाद वो परमेश्वर से सुन पाया. Because when we are in the habit of seeing from the old way, we could not be able to hear from God. और जब हम अपने पुराने तरीके से देखते हैं तब हम परमेश्वर से नहीं सुन सकते. See, Saul and his companion were entering Damascus. और वहाँ पर शाऊल और उसके साथी जो हैं दमिश्क के शहर में आ रहे थे. And they are going to persecute the church. और वो वहाँ पर कलीसिया पर सतावट को लेकर आ रहे थे. And they entered
entered that place to destroy the people those who are following Christ. और वहां पर जो लोग मसीह के पीछे चल रहे थे उनको नाश करने के लिए आ रहे थे। And when they entered the place, there was a light brighter than sun. और वहां पर एक रोशनी चमका जो सूरज से भी अधिक रोशनीदार था। The word clearly shows that everybody was there, and Saul and his company saw the light. और वहां पर सब लोग थे, लेकिन सबने जो है उस रोशनी को देखा। But nobody could hear what God told Saul. और लेकिन जो शाऊल को परमेश्वर ने बोला वो और कोई नहीं सुन पाया। Nobody could hear that. और वो कोई और नहीं सुन पाया। And nobody became blind. और कोई अंधा नहीं हुआ। Only Saul became blind. और केवल शाऊल अंधा हुआ। Nobody could, other than Saul, others could not hear because they were looking in the same old way of looking. और क्योंकि वो पुराने तरीके से ही देख रहे थे। But as Saul has lost his sight, he was able to hear from God. और जब शाऊल वहां पर उसको कुछ दिखाई नहीं देता था, वो परमेश्वर से सुन पाया। Here in this chapter 9, chapter 8 is telling that they all heard and they all saw. और वहां पर सबने सुना और देखा। This here is reading. But when we go to chapter 26 verses 13 and 14, और वहां पर प्रेरितों के काम 26वें अध्याय में जब हम जाते हैं, verses 13 and 14, he is telling that at midday walking along the road I saw a light from heaven brighter than the sun shining around me and those journeyed with me, and when we all had fallen to the ground, we all had fallen to the ground, I heard a voice speaking to me and saying in Hebrew, in language. See, everybody fell to the ground. और वहां यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग भूमि पर गिरे। Everybody fell to the ground. We all saw the light. और हम सब ने उस रोशनी को देखा। But Paul is telling that I heard that sound. और लेकिन पौलुस कहता है कि उसने उस शब्द को सुना। So Paul lost his sight. और शाऊल को वहां पर उसका नजर चला गया था। And the voice was clear. Why not the other people could not hear? और लेकिन उसके लिए आवाज स्पष्ट था, दूसरे लोग नहीं सुन पाए। Because their eyesight was normal. They were able to concentrate on the thing they could able to see. और क्योंकि वो लोग अपनी नजर से जो चीजें हो रही हैं, घट रही हैं, उनको देख पा रहे थे। Because they were having this sense also. और क्योंकि उनका वहां पर the vision they had. और the वो vision. देख पा रहे थे। Once they could able to see, they were looking into all those places about the light has come, so they could not able to concentrate what God is speaking. और क्योंकि वहां पर रोशनी इतना था, वो लोग देख पा रहे थे परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, उस बात को नहीं सुन पाए। See, the word is very clear that it is telling that everybody had the sound also. और सबने उस आवाज को भी सुना। But nobody is able to listen what God is speaking. और कोई लेकिन सचमुच नहीं सुन पाया क्या बोला। Because everybody was seeing. और क्योंकि सब लोग देख रहे The way थे। it's a very old way. और पुराने तरीकों से। As Saul has lost the sight. और क्योंकि शाऊल को वहां पर नजर नहीं आया। His old way of seeing has gone. और उसका पुराना तरीका देखने का जो है वो चला गया। His old way of looking into things has gone. और जो पुराने तरीके से वो चीजों को देखता है वो चला गया। In chapter 22 verse 9 also we see that Acts of Apostles chapter 22 verse 9. और प्रेरितों के काम उसका 22वां अध्याय उसका 9वां वचन। And those who were with me indeed saw the light and were afraid, but they did not hear the voice of him who spoke to me. और मेरे 9 मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। They all heard the sound, but they could not hear the voice. और उन्होंने उस आवाज को तो सुना, लेकिन उस शब्द को ना सुना। But Saul could hear because he came out of the old way of seeing. और लेकिन शाऊल ने सुना क्योंकि वो अपने पुराने तरीके से जो देखने का था उससे बाहर निकला। So to understand, to see what does God has promised us, what does God has kept us for us in the future, we need to come out of the old way of seeing. और क्योंकि देखने के लिए, समझने के लिए कि परमेश्वर ने आगे के लिए क्या रखा है, हमारे अपने पुराने तरीके से जो देखते हैं उससे बाहर निकलना है। And the next thing that Saul saw after 3 days in 9 chapter 17 and 18 we read that and Ananias went his way and entered the house, and laying his hands on him he said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road as you came has sent me that you may receive your sight and be filled with the Holy Spirit. Immediately there fell from his eyes something like scales, and he received his sight at once, and he arose and was baptized. और प्रेरितों के काम 9वां अध्याय उसका 17वां और 18वां वचन। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और
कर बपतिस्मा लिया। So see here, there was something scale-like thing was covering Saul's eye. और यहाँ पर कुछ छिलके सा बात था जो शाऊल के आंखों को ढके हुए था। See, Paul came out of that old way of seeing, और शाऊल जो है वो अपने पुराने तरीके से बाहर निकल आया था, but he could not see लेकिन फिर भी वो देख नहीं पा रहा that there is था। still something lying over his eyes. और क्योंकि वहां पर कुछ था जो उसकी नजरों के सामने था। Many times we get baptized, we receive the gospel, we get baptized, we became the child of God. और कई बार हम बपतिस्मा ले लेते हैं, वहां पर हम परमेश्वर के बच्चे जन बन जाते हैं, But still, there is something attached to our life. और तब भी लेकिन कुछ हमारे जीवन में वहां पर जुड़ा रहता है। The second point is that to see like Christ, और दूसरा बिंदु जो है मसीह के समान देखना, the scale should fall away from our eyes. और जो छिलका है वो निकलना है। If the scales are above our eyes, you and me cannot see properly. और जो छिलका सा हमारी नजरों के ऊपर होता है, अगर वो नहीं निकलेगा हम नहीं देख सकते। We may ask that yes, we don't have any scales or such things. और हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ हमारे आंखों में ऐसा कोई छिलका नहीं है। But there may be kind of pride, or there may be whatever the behaviors which is not pleasing, or such things may be there in our eyes, then you and me cannot have the vision of God. और वो लेकिन हो सकता है वैसा छिलका नहीं, लेकिन हो सकता है घमंड या कोई भी ऐसी बात जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है उसको निकलना है। When we see with the prideful eyes, जब हम घमंड भरी नजरों से देखते when we हैं, see with the lustful eyes, और या फिर हम वहां पर लालसा भरी नजरों से देखते हैं, we cannot see the right thing. और तब हम सही बात को नहीं देख But when पाते। we see with the eyes of God, और लेकिन जब हम परमेश्वर की नजरों से देखते we हैं, can see the way God sees. और हम जैसे परमेश्वर देखते हैं उस बात से देख So सकते it's हैं। not only enough for us to give up the sight which we have, come out of that old way of seeing, और ये सिर्फ काफी नहीं है जो पुराने तरीके से हम देखते थे उससे बाहर निकले, but we need to, come out of the scales, whatever that is blocking our sight. और लेकिन हमको जो भी हमारी नजरों के सामने है उससे भी बाहर निकलने की जरूरत है। That may be our habits, हो सकता है हमारी आदत, that may be whatever things, that may be our worldly pleasures. और सांसारिक आनंद, These things can stop the things that you are seeing which is ahead of you. और जो आपको आगे की बातों को देखने के लिए रोकता है। The third thing I want to bring in front of you, the main thing is that we need to have an open eye. और तीसरी बात जो है हमारी नजर खुला होना चाहिए। Many times we feel that my life is not comfortable. और कई बार हम इस प्रकार से सोचते हैं कि मेरा जीवन आरामदायक नहीं I है, have so many issues in my life. और मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। I lost this thing, I don't have this much, whatever, many complaints we all have. और ये खो गया है, ये चीज नहीं है, कई सारी शिकायतें हैं हमारे By पास। complaining, by looking into those ways, we forget the things that God has already prepared for us. और कई बार जो अभाव है उन बातों को देखकर, जिन बातों से परमेश्वर ने हमें आशीष किया है, हम उन बातों को नहीं देख Even the पाते। blessings that we want to receive, the blessing may be there in front of us. The need we have, that may be in front of us, but we may not be seeing that. और कई बार जो आशीषें हैं परमेश्वर ने रखा है हमारे सामने हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उन बातों को You नहीं may be देख quite पाते। near, you may be quite near to that blessing, और हो सकता है आप उस आशीष के बहुत करीब होंगे, but still you may not be seeing that. और फिर भी आप उस बात को नहीं देखते होंगे, Because God has to open your eyes. और क्योंकि परमेश्वर को आपकी नजर को खोलना है। In Genesis chapter 21:19 we read, और उत्पत्ति उसका 21 के 19 में हम पढ़ते हैं, here we see that Abraham is sending Hagar and his child Ishmael out of the house. और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम जो है हागार और इश्माइल को घर से निकालता है, And Hagar is along with the small child Ishmael, she is roaming, wandering in the desert. और वहाँ पर जो है हागार जो है जंगल में वो भटकती है बच्चे के साथ में, The water she carried has completed, finished. और जो पानी वो लेकर घर से निकली थी वो खत्म हो गया। And Hagar now she felt that I could not see my son dying. और फिर हागार इस प्रकार महसूस करती है कि जो मेरा बेटा मर रहा है उसको मैं नहीं देख सकती। That means she has already decided that my son is going to die. और इसका मतलब उसने इस बात को निर्णय कर लिया था कि उसका बेटा मरने वाला But she है। was not realizing that the promise that God has promised Abraham. और लेकिन उस जो वायदा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया उस बात को उसको याद नहीं She may था। not be the actual wife of Abraham, but the promise given to Abraham will even follow Ishmael, that she forgot that. और वहां पर जो वो अब्राहम की पत्नी नहीं थी, लेकिन अब्राहम को दिया गया आशीष जो है, जो वायदा है वो इश्माइल के द्वारा भी आएगा, वो इस बात को नहीं समझी। So even though she was roaming and wandering in the desert, when she felt that there is no water, she decided my son will die. I'm not going to, see, I could not see that. She left her son in a place
and she separated herself. और वहां पर जब उसने देखा कि पानी नहीं है और उसने अपने बेटे को उसने ऐसा सोचा वो मरने वाला है, मैं मरते हुए नहीं देख सकती, वो अपने आप को अलग कर लेती है। And in that verse, God is opening her eyes. You read that. और 19वें वचन में परमेश्वर उसकी आंखों को खोलते हैं, 21 का 19। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई दिया, तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। See, was it a miracle? क्या कोई यहाँ पर अद्भुत का काम था? It was a desert. और वो एक मरुभूमि था। Is that the place of water came all up immediately and just like a miracle? और ऐसे एक अद्भुत काम के तरीके पे वो पानी आया क्या? The place of water was there. वो पानी का जो जगह था, स्रोत था, वो वहीं पर The spring था। was there already. और वो कुआं जो था वो वहीं था। But the thing is that Hagar could not see that. और लेकिन बात ये था कि हागार उस बात को नहीं देख पाई। When Abraham sent her away, जब अब्राहम उसको बाहर निकाल दिया, God will not leave Hagar because of Ishmael. और वहां पर परमेश्वर जो है हागार को इश्माइल की वजह से नहीं छोड़ देंगे। But still, Hagar could not see that blessing. और लेकिन फिर भी जो है हागार उस आशीष को नहीं देख पाई। So God is opening her eyes to see. और इसलिए परमेश्वर जो है उसकी आंखों को खोलते हैं। The same source of water was there already. और वहां पर वो स्रोत जो पानी का था वो वहीं पर था। But the thing is that Hagar could not see. और लेकिन हागार देख नहीं पाए। Many times in our lives also we may be having the same blessing in the same place where we are living. और उसी तरह जहां पर हम हैं वहीं पर वो आशीष हो सकता है। We may be roaming here and there for many things, or we may be going behind people for such blessing. और उस आशीष के लिए हम लोगों के पीछे चलते होंगे। But today I just want to encourage you. Can we ask God, Lord, open my eyes? और लेकिन क्या हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, प्रभु मेरी आंखों को खोलें। Lord, open my eyes so that I can see the thing that you have prepared for me, the blessing that you already made for me. और जिन आशीषों को आपने मेरे लिए रखा है उस बात के लिए मेरी नजरों को खोलें। So we need to come out of our old way of seeing. और हमें जो है हमारे पुराने तरीके जो नजर है उससे बाहर We निकलना need to है। take out all those things that is blocking our vision. और हमारी नजर को जो रोके हुए है, जो ढांपे हुए है, उसको निकालना है। And we need to ask God to open our eyes. और हमें परमेश्वर से मांगना है कि हमारी आंखों को खोले। Because if our eyes are not open, you and me cannot see the blessing that God has prepared for us. अगर हमारी आंखें ना खुली हों तो जो परमेश्वर ने हमारे लिए आशीषों को तैयार करके रखा है वो हमें नहीं दिखेंगी। Then we may think that when I have an open eyes that God has opened, I could see even like God. और अगर परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला तो मैं परमेश्वर के समान देख सकता हूँ। We may feel that my way of looking is become like God. और मेरा जो देखने का नजरिया है वो परमेश्वर के समान हो गया। Still we need to do one more thing. एक और बात करना है। Because we need not to do on our own way. और हमें अपने तरीके से नहीं करना। But allow God to do that. और परमेश्वर को अनुमति देना है। Turn our Bible to Mark chapter 8, 22 to 26. और मरकुस उसका 8वां अध्याय उसका 22 से 26 तक। Here we see that Jesus Christ is healing a blind man at Bethsaida. और यहाँ पर हम देखते हैं बेथसैदा में जो है यीशु एक अंधे को चंगा करते हैं। He's taking him out of the village. और उसको एक गांव से बाहर निकालते हैं। He's spit on his eyes. और उसके आंखों में थूकते हैं। And put his hands on him. और अपने हाथ उसके ऊपर रखते हैं। In 23rd verse, the last part says, he asked him if he saw anything. और 23वें वचन के आखिरी भाग में यीशु से पूछते हैं क्या तू कुछ देखता है? He's asking him, are you able to see anything? और यीशु पूछते हैं क्या तू कुछ देखता है? And he is responding that I see men like trees walking. और वो 24वें वचन में वो उत्तर देता है कि मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वो मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। That means he is able to see the trees and also men. और इसका मतलब वो पेड़ को भी देख पाता है और इंसान को भी देख पाता है। But the only thing is that he could not able to see clearly. और इसका मतलब ये है कि वो स्पष्टता से नहीं देख पाता। He is able to differentiate between men and trees. और वो पेड़ और मनुष्य को के बीच में अंतर देख पाता है। Here what Jesus is doing? यहाँ पर यीशु क्या करते हैं? What do you see? He's asking him. और यीशु से पूछते हैं कि तू क्या देखता है? That means he is seeing on his own. और इसका मतलब वो अपने आप में देखता है। He is lifting his eyes and seeing on his own. और अपनी आंखों को उठाकर वो खुद देखता है। Jesus has already healed him. और यीशु ने उसको चंगा किया है। But when he looked, he could not able to see. He could not able to differentiate between men and tree. But he could able to see that it's men and it's tree, but it's not clear. और वहां पर वो इंसान और पेड़ के बीच में फर्क नहीं कर पाता, लेकिन दोनों को देख पाता है। But then on the 25th verse, it's saying that again Jesus, the second part again saying that Jesus
put his hand on his eyes again and he's doing what he's doing, made him to look up. और उसके बाद 25वें वचन में कि उसको दोबारा उसके हाथ पर हाथ रखकर और अंधे से ध्यान से कहा, He made him to look up and he was restored and saw everything clearly. और उसके बाद उसको दिखाई देने लगा. தமிழ் में अच्छा तमिल में it's written wonderfully, கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும்படி செய்தார். He made him to look up. और उसके बाद यीशु ने उसकी आंखों को ऊपर देखने के लिए किया. First he asked him, what you see? और पहले पूछा कि क्या देखते हो. Now he is making him to look up. और अब यीशु जो है उसको ऊपर नजर उठाने को कहते हैं. You know, when God make you to see the things, we can see it very clearly. और जब यीशु जो है नजर उठाकर देखने को कहते हैं, तब हम स्पष्टता से चीजों को देख सकते हैं. Anytime we do things on our own. लेकिन कई बार हम खुद ही से चीजों को करते But हैं. can we allow God to make us to see the things that is prepared for us? और लेकिन क्या हम परमेश्वर को अनुमति देंगे कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उन बातों को हम देख In सकें. the same way, you know, one more incident happening in Genesis. और एक और ऐसे ही घटना जो है वो उत्पत्ति में होता है. In the 13th chapter, 10th verse and 14th verse. और उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय उसका 10 और 14. Here, just to give background, Abraham and Lot are moving away from their place. और यहाँ पर अब्राहम और जो लूत है वो अपनी जगह से हटते हैं. They have both gathered lot of property. और उन दोनों के पास जो है बहुत सारा संपत्ति है. They both got many things. और उनके पास बहुत सारा संपत्ति है. As they got everything, you know, the place could not hold what they had. और क्योंकि दोनों के पास बहुत संपत्ति हो गया, जिस जगह पर थे वो जगह दोनों के लिए काफी नहीं था. And they decided to part ways. और तब उन्होंने सोचा कि हम अलग-अलग हो जाएंगे. And in the 10th verse we read 13 Genesis chapter 13:10 we read, and Lot lifted his eyes and saw all the plain of Jordan, that it was well watered. और तब जो है 10वां वचन, लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है. Lot आंख उठाकर, Lot lifted his eyes. और तब लोत ने आंख उठाकर देखा. Both are together. और दोनों साथ में हैं. They decided to part ways. और दोनों ने निश्चय किया कि अलग-अलग हो जाएंगे. But Lot is looking on his own way. और लोत जो है अपनी तरीके से देखता है. But when we come to the 14th verse, लेकिन जब 14वें वचन में देखते हैं, Genesis 13:14. और उत्पत्ति 13 का 14. And the Lord said to Abraham, after Lot had said to him, lift your eyes now, look from the place where you are, northward, southward, eastward and westward. See, they both decided to part ways. और दोनों ने निश्चय किया कि हम अलग-अलग हो जाएंगे. But Abraham is still waiting. लेकिन अब्राहम इंतजार में है. Lot lifted his eyes and saw what he could see. और वहां पर लोत ने जो है अपनी नजरें उठाकर देखा जो वो देख सकता था. But here, God is asking Abraham, God is making Abraham to see. और लेकिन यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को करते हैं कि वो देख सके. And we all know the future. और हम सब भविष्य को जानते हैं. Abraham was so much blessed. और अब्राहम जो है बहुत आशीष पाया. Abraham, could not see. Lot could not see the way God saw, but Abraham was waiting for God's instruction and saw the way God saw. Abraham was blessed, but Lot, according to his own way, he lifted his eyes and saw whatever the green. और वहां पर जो अब्राहम है, परमेश्वर ने नजर उठाकर देखने को कहा, तो परमेश्वर ने जैसे देखा उसने उस बात को देखा. लोत ने लेकिन अपने खुद से आंखों को उठाया तो उसने उस हरियाली को देखा. So if we see through our own way, अगर हम अपने ही तरीकों से देखते हैं, maybe as Lot saw that area, that plain was a wonderfully watered place. और जैसे लोत ने देखा कि वो जगह जो है हरियाली था, and he decided to move to that side. और उसने उस तरफ जाने को तय किया. But Abraham left it to God and he waited. God is making him to see eastward, southward, northward and westward. और अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर छोड़ा. परमेश्वर उसको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर देखने को. And Abraham was so much blessed. और अब्राहम वहाँ पर आशीष पाता है. But we know the future of Lot. हम लोत के भविष्य को जानते हैं. Lot produced the Moabites and Ammonites. They become stench in the, Israelites. They become the enemies of Israelites. और लोत के द्वारा जो है मोआबी और अम्मोनी आए और वो इजरायलियों के लिए हमेशा के लिए परेशानी बन गए. Because he looked up his eyes and he saw. और क्योंकि उसने अपनी आंखों को उठाकर देखा. But Abraham surrendered to God and God made him to see. और अब्राहम ने अपने आप को समर्पित किया और परमेश्वर ने उसको देखने के लिए. Beloved, today how are we seeing? कैसे हम देखते हैं? Maybe we might have given up everything. We might have given up the past way of seeing. We might have blinded ourselves.
और हो सकता है हम अपने पुराने तरीकों को छोड़ दिया होगा देखने का, हम अब अंधे हो गए होंगे। Even we might have removed everything that is blocking our vision. We might have, seeing very clearly. और हो सकता है जो भी बात हमारे नजरों को रोकता है उसको भी हमने हटा दिया होगा। Maybe at times God may be asking us, helping us to even open our eyes and see the blessing that He has prepared for us. और कई बार परमेश्वर अपनी आंखों को खोलकर जो परमेश्वर ने आशीष रखा है उसको देखने को बोलते होंगे। But are we allowing God to make us see? लेकिन क्या हम परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि वो हमको देखने के Or are we लिए still करें? looking on our own ways? और या फिर हम अपने ही तरीकों से देखते हैं? Because when we see, we will calculate our own ways. क्योंकि जिस नजर से हम देखते हैं हम अपने ही तरीके से हम वहाँ पर गणना करते हैं। I don't know whether I should share or not, but it came to mind and I'm telling, as most of your youth over here, और मुझे नहीं पता ये बांटना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप में से कई लोग जवान हैं इसलिए मैं इस बात को बता रहा many हूं। are waiting for your marriages. और आप में से कई लोग जो है आपकी शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं। Many times we see somebody is looking good, you may feel that this girl is for me. और कई बार जो है अगर कोई लड़की अच्छी दिख रही है वो लड़की मेरे लिए है, इस प्रकार हम सोचते हैं। Ashok is smiling. अशोक So the मुस्कुरा same रहा way है। you may feel that that boy is looking good, that boy may be for me. और उसी तरह से वो लड़का अच्छा दिखता है, वो लड़का मेरे लिए है, इस प्रकार सोच But सकते हैं। when we see someone is good for me according to my own way, I cannot be blessed. और अगर मैं अपने ही तरीके से देखता हूँ तो हो सकता है मैं उसमें आशीष ना पाऊँ। So you all need to be very much careful about your eyes. और इसलिए हमें अपनी नजरों में बहुत ही वहाँ पर ध्यान रखना है। Many times we pray and go, Lord, I should see only the right things. और कई बार हम प्रार्थना करके जाते हैं जो सही बात है उसी को मैं देख पाऊँ। But still, we should allow God to see through our eyes. और लेकिन फिर भी हमें अनुमति देना है कि परमेश्वर के द्वारा हम देख पाएं। I'll just share my testimony, our testimony rather. और मैं हमारी गवाही को मैं बांटना चाहूँगा। Maybe you might have heard. और आपने सुना होगा। In our culture, normally, the boy will go to the girl's house and see. और हमारे संस्कृति में जो यहाँ पर है वो वहाँ पर लड़का जो है लड़की के घर जाकर लड़की देखने जाता है। Maybe even may not be going to the home or something like that, but maybe they come outside, they see the girl in the market or in the church, somewhere like that. और कहीं ना कहीं पर उस लड़की को देखा जाता है। And when this thing will happen when both the families discussed about these things. और जब दोनों परिवार इन बातों के बारे में बात कर चुके होते हैं उसके बाद ये होता है। And in our case, that both the families they started speaking, and how is it and all. Then Rosie's parents invited our parents, and they went to see her. और वहाँ पर जो है रोजी दीदी के जो परिवार वाले हैं उन्होंने भैया के परिवार वालों को बुलाया और वो देखने के लिए गए। And that time I'm also supposed to go. और उस समय पर मुझे भी जाना था। That time I was in Chennai, she was in Tuticorin, in her hometown. और मैं चेन्नई में था और दीदी जो हैं वो वहाँ पर तुतुकुरन में थे। And when we go, if I like, then only things will proceed. अगर मुझे पसंद आए तभी आगे बातें बढ़ेंगी, इस प्रकार था। But I'm not boasting about myself, but somewhere by the grace of God. और परमेश्वर के अनुग्रह से। And I was here in Chennai, I was not ready to go. और मैं चेन्नई में था और मैं तैयार नहीं था जाने के लिए। I know if I go and see according to my own ways. और मैं जानता था अगर मैं अपने ही तरीके से जाकर देखूंगा, I may go wrong. और मैं गलत हो सकता हूँ। But I left it to God. और मैंने परमेश्वर के हाथ में छोड़ा। I remember that was a Wednesday. और वो एक बुधवार था। And that time I was preparing for nationals. और मैं उस समय पर नेशनल्स के लिए मैं तैयार हो रहा था। I was in the Air Force handball camp. और मैं एयर फोर्स हैंडबॉल कैंप में था। So we need to practice a lot. और हमें बहुत वहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ता था। Morning 3 to 4 hours practice, evening 3 to 4 hours practice. और सुबह 3 से 4 घंटा, शाम को 3 से 4 घंटा हमें उस खेल के लिए प्रैक्टिस होता था। I was not good at fasting and praying and all. और मैं उपवास करके प्रार्थना करने में मैं अच्छा नहीं था। Even now also. और अभी भी। But that day I decided to fast and pray. और उस दिन जो है मैंने निर्णय किया कि मैं उपवास करके प्रार्थना करूंगा। Somewhere God planned in such a way that day falls in Wednesday. Wednesdays we don't have evening practice. और वो दिन जो है वो बुधवार को हुआ और उस दिन जो है शाम को कोई वहाँ पर शाम को कोई वो नहीं था, प्रैक्टिस नहीं था। But so that day after morning practice I decided to fast and pray. That's all. और वो सुबह की प्रैक्टिस के बाद मैंने निर्णय किया कि मैं उपवास करके प्रार्थना करूंगा। And they went, and even she was disappointed that the boy didn't come and see me. और वहाँ पर रोजी दीदी भी वहाँ पर निराशा में हुए कि लड़का नहीं आया देखने के लिए। She had expectations that somebody will come and see. और उनको एक उम्मीद था कोई आकर देखेगा। But I didn't go. और मैं नहीं गया।
So she had many questions in her heart. और उनके मन में काफी सारे सवाल थे। But I had own faith that if that is the will of God, let it happen. और मेरे को विश्वास था कि अगर परमेश्वर की इच्छा है तो वो बात हो। If I see according to my own way, I may go wrong. अगर मैं अपनी तरीके से देखूंगा तो मैं गलत ठहरूंगा। For the glory of God, I am telling today in front of the congregation that we are so blessed to be married with one another. और परमेश्वर के सामने मैं इस बात को गवाही के रूप में बोलता हूँ कि हम लोग आशीषित हैं एक दूसरे के साथ विवाह करके। Because couple of months before that thing happened, my sisters were asking me, what is that you need from the bride you want to get married? और कुछ महीनों पहले मेरी बहनें पूछ रही थी कि तुम जिससे शादी करना चाहते हो तुम क्या उम्मीद करते हो उससे? Till that time I never, thought of such things. और तब तक मैंने कुछ सोचा नहीं था। But whatever the things that I pointed out, like this and all, some 6-7 points I said. और कुछ 6-7 बिंदुएं मैंने उनको बताया था। And all these I could found in her. और वो सारी बिंदुएं जो हैं मेरे को दीदी के अंदर मिला। Maybe if I could have gone, और अगर मैं गया होता, it could have been also other way. और वो कुछ और तरीके से भी हो सकता था। But when I left it to God, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के हाथ में छोड़ा, and God did it for me. और परमेश्वर ने मेरे लिए किया। The same way we need to be very much careful about our eyes. और इसलिए हमें ध्यान रखना है हमारी नजर के प्रति। We need to look into the way that God looks. और जैसे परमेश्वर देखते हैं वैसे देखना है। When we look into the way that God looks, the problems comes in front of us will become very small. और जब हम जिस तरह से परमेश्वर देखते हैं उस नजर से देखें जो परेशानी हमारे सामने है वो बहुत छोटा हो जाता है। Samson, along with his parents, moving towards Timnah. और शिमशोन तिम्ना की ओर जाता है अपने माता पिता के साथ। We read it in Judges chapter 14. और न्यायों का पुस्तक उसका 14वें अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं। On the way, they are, seeing a fierce lion approaching them. और रास्ते में जो है एक शेर को वो देखते हैं। How many of you encountered with a lion? शेर से किसका आमना सामना हुआ है? No one, right? But if you imagine, if you are encountered with a lion, what will be your reaction? अगर आपके साथ शेर के साथ आपका आमना सामना होगा तो आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? डर जाएंगे। शेर की बात तो छोड़ो, कुत्तों को देखते डर जाते हैं। It's true, right? है ना? So, but Samson and the family are encountering a lion. और लेकिन शिमशोन और उसका जो परिवार है वो एक सिंह के साथ उनका आमना सामना होता है। But this verse record, chapter 14:6, it records that Samson teared the lion just like a lamb. और यहाँ पर 6वां वचन जो है इस प्रकार बोलता है कि शिमशोन ने एक बकरी के बच्चे को फाड़ने के समान वो सिंह को फाड़ डालता है। Why he was able to destroy the lion just like a lamb? और क्यों वो ऐसा कर पाया? Because the Spirit of God came upon him, the word records. क्योंकि वचन बोलता है कि यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। Maybe in front of him the lion is coming, but with the Spirit of God, with God's eyes, he's seen just like a small lamb. और वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा, लेकिन परमेश्वर की नजर से जो है उस शेर को उसने एक छोटा बकरी के बच्चे के रूप में देखा। He's able to see just like a simple lamb. और एक छोटे से बकरी के बच्चे के रूप में देखा। If he could have thought it could have been lion, it could have been very difficult. अगर वो सोचता कि वो शेर है तो मुश्किल होता। That's what will happen, right? If a small lamb will come in front of us, you will try to, go in. You will have to try to go along with that. और अगर एक छोटा सा अगर बकरी का बच्चा आता है तो उसके साथ में आप जाएंगे। Even it will try to attack you. एक लात मार देता है यार, क्या करेगा, है ना? यही होता है ना, सिंपल में यही होता है। But सोच के देखो, एक शेर आता है तो आपको लगता है कि ये छोटा बकरा का बच्चा है तो आप भी लात मार सकते हो। तब भी हमारी सोच से Samson perceived that the lion as a lamb. और वहाँ पर जो है शिमशोन ने सिंह को एक बकरी के बच्चे के रूप में देखा। No, the same way in our lives also, the problems arise from every side. और हमारे जीवन में भी परेशानियां हर तरफ से आती हैं। The problem maybe seems to be like a lion. और जो परेशानियां हैं वो सिंह के समान दिखती But when we होंगी। have the Spirit of God in us, और लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर when we है operate in that Spirit, और जब हम उस आत्मा में हम कार्य करते हो, when we look into that, that way that God sees, और जब हम जिससे परमेश्वर देखते हैं उस नजर से देखें, that big problem will become very small for us. और वो बड़ी परेशानी हमारे लिए छोटा हो जाता है। And the same way, when David encountered Goliath, we read in 1 Samuel 17. और जब पहला शमूएल 17 में हम देखते हैं दाऊद गोलियत के साथ आमना सामना हुआ। When David is approaching Goliath, Goliath is asking, "Am I a dog?" In the 43rd verse, we read that, "Am I a dog that you come with stones and sticks?" और वहाँ पर गोलियत पूछता है क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू वहाँ पर लकड़ी के साथ मेरे पास लाठी के साथ आता है। David knows that he's a born fighter, he's a giant.
और दाऊद जानता है कि वो वहां पर जन्म से ही एक योद्धा है, एक युद्ध करने वाला है। To fight a giant, to fight a soldier, he's not taking a sword or even a javelin, nothing. He's not taking anything else, but he's going with stones and sticks. और वहां पर योद्धा है जानने के बावजूद जो है कोई तलवार वगैरह ना ले जाकर वो कुछ पत्थर और लकड़ी को ले जाता है। That may be in his heart, एक कुत्ता जैसा है, बस that's enough. I'm just going to encounter dog. कुत्ते के लिए पत्थर काफी है। और वो उसके मन में वैसा ही उसने उस गोलियत को देखा होगा कि उसको एक कुत्ते के समान देखा होगा। Because David was anointed by God. क्योंकि दाऊद जो है परमेश्वर के द्वारा अभिषेक पाया हुआ था। And the king was a person who lost anointing. और जो राजा वो व्यक्ति था जिसने अपने अभिषेक को खो दिया था। So when he lost anointing, he was not able to come out of his tent. और जब उसने अभिषेक को खो दिया तो वो वहां पर अपने तंबू से बाहर नहीं निकल पाया। The anointed person, for him the stone is enough. और एक अभिषिक्त व्यक्ति के लिए पत्थर काफी है। Maybe he might have thought or not, but Goliath himself is telling that am I a dog? और वहां पर गोलियत खुद से बोलता है कि क्या मैं कुत्ता हूँ। That time, David could have realized that you are a dog only. और तब दाऊद ने सोचा होगा कि हाँ ऐसा ही है। Because of the anointing he carried. क्योंकि जो अभिषेक उसके पास था। He saw Goliath as a dog. और उसने गोलियत को एक कुत्ते के समान देखा होगा। So every problem we face every day. और हर परेशानी जो हर दिन हम सामना करते हैं। Maybe a health issue, maybe relationship issues, maybe a financial need. और हो सकता है स्वास्थ्य की परेशानियां या आर्थिक समस्याएं या स्वास्थ्य समस्याएं। Whatever may be. जो भी कुछ हो। But God is able to fulfill every of our needs. और परमेश्वर हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए God is तैयार able है। to bring it to power, but we need to have the eyes of God. और परमेश्वर सामर्थ्य है, हमें परमेश्वर का नजर रखना है। Can we look into the problems we face every day through God's eyes? जो परेशानियां हमारे पास रोज आती हैं, क्या उसको हम परमेश्वर की नजर से देख सकते हैं? Not with our own eyes. अपनी आंखों से नहीं। As I shared my testimony, I am blessed because I just want to give it to God. और मैं आशीषित हूँ क्योंकि मैंने परमेश्वर के हाथ में उस बात को दिया। And Samson could able to win over a lion because he was anointed. The Spirit took him. He saw the lion as a lamb. और वहाँ पर शिमशोन उस बात को कर पाया क्योंकि उसने वहाँ पर शेर को जो है बकरी के बच्चे के रूप में देखा। David saw Goliath as a dog. और दाऊद ने जो है गोलियत को एक कुत्ते के समान देखा। How is our life today? How is our eyes today? हमारी आंखें कैसी हैं? हमारा जीवन कैसा है? Today can we ask God? क्या हम परमेश्वर से मांग सकते हैं? Give me the sight, the way that you see. प्रभु हमको आपकी नजर दीजिए जैसे आप देखते हैं। I want to see like you, Lord God. और प्रभु आपके समान मैं देखना चाहता हूँ। Shall we ask God, Lord, open my eyes today? और परमेश्वर से मांगे कि मेरी आंखों को खोलें। Lord, I don't want to see with my own way of looking into things. और जैसे मैं खुद से देखता हूँ वैसे ही मैं देखना नहीं चाहता। I just want to come out of every way that I was seeing just till now. और जैसे मैं अभी तक देखता आया हूँ चीजों को वैसे नहीं देखना चाहता। I want to come out of that completely. और उससे मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। I just want to take away everything that is blocking my sight. और जो भी कुछ मेरे नजरों को रोके हुए है वहाँ पर उससे मैं निकलना चाहता हूँ। Also, Lord, can we ask God, Lord, open my eyes? और क्या हम मेरी आंखों को खोलें इस प्रकार हम मांग Also, सकते let us हैं। surrender into God's and Lord, you enable me to look into the things way you see. और प्रभु मुझे जैसे आप देखते हैं चीजों को वैसे देखने के लिए मुझे अनुग्रह करें। Shall we all rise on our feet? आइए हम अपनी जगह पर खड़े हों। हम सब अपनी जगह पर खड़ा होकर प्रभु के सम्मुख में हम बोलेंगे, प्रभु आप हमारी आंखों को खोलिए, हमारी आंखों को खोलिए प्रभु करके प्रभु से बोल सकते हैं इस समय में। अंधों को रोशनी देने वाला परमेश्वर है। हम प्रभु से बोलेंगे, आंखों खोल मेरी। प्रभु के सम्मुख में बोलेंगे, प्रभु आप मेरी आंखों को खोलिए करके बोलेंगे इस समय में। God is able to open your eyes tonight. I don't know what God is speaking to you today through the verse, but I believe that definitely the way we see things should change tonight. We should have the eyesight of God so that we can see very clearly, so that that thing should हमारी नजर परमेश्वर की नजर जैसा होना चाहिए, ताकि हम मतलब जिस तरीके से प्रभु देखते हैं उस तरीके से देखने के लिए परमेश्वर में अनुग्रह देने के लिए मांगेंगे इस समय में। हम प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मेरे आंखों को खोलिए करके बोलेंगे। अंधों को रोशनी देने वाला परमेश्वर है। बस शायद हम उस अंधों को भी प्रभु ने पहले तो चंगा किया, वो खुद देखा तो कुछ नहीं ढंग से देख नहीं पाया, लेकिन प्रभु ने उसको देखने को सहायता किया। गॉड प्रभु ने उसको दिखवाया, देखने के लिए मदद किया, वो साफ सुथरा देख पाया।
आज हो सकता है सब कुछ हमारी नजर से सब कुछ ठीक चल रहा होगा, लेकिन एक बार प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। प्रभु आप मेरे आंखों को खोलिए करके बोलेंगे, प्रभु आप मेरे आंखों को खोलिए करके हम प्रभु के सम्मुख में बोलेंगे। समय में प्रभु आपका अनुग्रह दिखाने के लिए योग्य परमेश्वर है। आपकी परेशानी आपके सामने छोटा हो जाएगा, जो भी आपके सामने बड़ा दिख रहा है वो सब कुछ छोटा हो सकता है। हम प्रभु से मांगे, प्रभु आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी। हमारी प्रार्थना रहे इस शाम को, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा, तू देता लोगों रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। प्रभु से मांगेंगे दिल से, प्रभु हमारी आंखों को खोलिए प्रभु जी। मैं पुराने अपने मनुष्यत्व को देखना नहीं चाहता हूं प्रभु जी, जिस तरीके से आप देखते हैं प्रभु उस तरीके से देखने के लिए हमें सहायता कीजिए करके प्रभु से मांगेंगे। Shall we ask God, Lord, I just want to see the way you see me, Master. I just don't want to do it in my own way, oh Lord God. Shall we surrender our lives to God's hand? परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को हम सौंप देंगे इस शाम को। प्रभु मेरे आंखों को खोलिए प्रभु जी, मेरे आंखों को आप खोलिए प्रभु जी। जो चीजों को मैं सही तरीके से जैसे आप देखते हैं प्रभु वैसे देखेंगे, अनुग्रह दीजिए करके बोलेंगे प्रभु जी, ताकि मेरे सामने शेर भी आए, मैं बकरा के बच्चा जैसे देख पाऊं प्रभु जी। Even a lion may come in front of us, let us see it as a small lamb, because the one who is in is greater than this world. जो हमारे में है वो इन सबसे ताकतवर है। Thank you Father। प्रभु के हाथ में हम सौंपेंगे अपने आप को। इवन हम अभी समय में प्रभु बोझ में भाग लेने के लिए हम जब अपने आप को दे रहे हैं, जैसे हम लास्ट में सुने थे दाऊद जब गोलियत को सामना किया था। पहला सामुएल, if you can read that verse, 1 Samuel 17:36, पहला सामुएल का 17वां अध्याय का 36वां वचन में लिखा है कि वो किस लिए वो शाऊल को उत्तर दे रहा है। मैंने एक बाघ को, एक बालक को मैंने मारा। You can read। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। कौन है वो? खतना रहित फलिस्ती। मैंने सिंह को बाला को मारा हूं और वो खतना रहित फलिस्ती भी उनके मेरे सामने वैसे रहेगा। I have killed a lion and bear, this uncircumcised Philistine will be like one among them. And today we are going to enter into the table of God. आज शाम को प्रभु भोज में भाग लेने के लिए हम तैयार हैं। You know what is the meaning of circumcision? खतना रहित का मतलब क्या है? It's a relationship bought by blood. वो एक रिश्ता है, खून बहाकर पाया वाला रिश्ता है। We have that relationship with Christ. Christ has shed his blood for us. पिछले हफ्ते हमने मनाए थे उस खुशखबरी को। God has won us by his blood. परमेश्वर ने अपने खून से हमें अपनाए हैं। हमारे सामने का हर एक परेशानी एक खतना रहित फिलिस्तीन जैसा हो जाएगा। When we have that, you know, that covenant relationship, मेरे लिए कुछ परेशानी है तो वो भी मेरे लिए आएगा और उनकी परेशानी मैं भी जाऊंगा। तो हमारी परेशानी में, in our troubles, God is there with us. हमारे लिए प्रभु खड़े हैं, आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि we have that circumcised relationship, we have that, we are in the covenant relationship. हम उस रिश्ता में हैं। Thank you Father। तो आज उस बात को मन में रखते हुए हम सब प्रार्थना करेंगे। जो लोग तैयार हैं, प्रभु
प्रभु भोज को लेने के लिए, those who are ready to take the communion, you can standing. जो लोग तैयार हैं प्रभु भोज को लेने के लिए वो लोग खड़ा रह सकते हैं, यदि नहीं है तो हम बैठ सकते हैं, लेकिन इस सोच के साथ प्रभु ने मेरे को